Good morning, 10th class. So, 10th class, we are on our chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe. In this chapter, we will basically study about how the idea of nationalism actually evolved. यानी कि जो हम आज समझते हैं कि nationalism क्या है, या फिर जो हम समझते हैं कि नेशन स्टेट क्या है, it went and it took its current meaning by a very long history of lot of revolutions, lot of changes in the viewpoint of people. ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस के बाद फाइनली अपने को पता चला था, और ये जो हम अब आज समझते हैं नेशनलिज्म, वो क्या था. और while doing this chapter we will also study about unification of few countries, यानी specifically about Germany, Italy and Britain. So now let us start with the chapter, and as you all know that generally in our history whenever we start with a new chapter, they generally mention either one incident related to the chapter, to the main incident, or they generally tell something else about that basic revolution or whatever happened, and after that we will notice then they come to the main point or the main theory of the chapter. So we will now start with the first thing that is being mentioned in our book, and you can see in your first page a painting is being given. Now this is the same painting that you can see on your screen. ठीक है. Now basically इस पेंटिंग में क्या दिया हुआ है? इस पेंटिंग में there is something that is something related to the Statue of Liberty. Okay, you can see that a Statue of Liberty is being shown, and there are many people moving towards it in a trail, और obviously सबके हाथ में एक एक कंट्री का क्या है, फ्लैग है. Now, so let us now study in detail about this painting. Now, this was the painting, and why are we studying this? Because it somehow signifies and tells us कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में. तो 1848 में French artist named Frederick Surio, he prepared a series of 4 prints. ओके, सो बेसिकली इसमें ये दिया हुआ था कि लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ड्रीमिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड अ सोशल रिपब्लिक. This kind of you can say thinking was developing among the people, and these people were somebody who were thinking that now we also want a democratic and a social republic kind of government in our countries as well. ठीक है, तो अब जो फर्स्ट प्रिंट है जो हम which is being given in our book is the painting in which you can easily see that the people of Europe and America, specifically men and women of all ages and every section of the society, are marching and offering their homage to the Statue of Liberty. यानी एक तरीके से ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि all the countries in Europe are somewhere wanting similar kind of governance in their country as well. तो बेसिकली इसमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पर्सोनिफाई किया था लिबर्टी को, एंड दे पर्सोनिफाइड लिबर्टी, फ्रीडम एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगरिन, तो उसी की तरफ सारी कंट्रीज मूव कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर वांटिंग टू हैव सिमिलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन देयर कंट्रीज एज वेल. नाउ यू कैन सी इजीली कि ये जो इन द हैंड देयर इज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, and in one hand and on the other there is charters of rights of man. If you remember in our 9th class chapter number 1 French Revolution में वो constitution के बाद declaration of rights citizens and rights of men करके जो charter था, उसी type के similar kind of things they are wanting to show us. यहाँ पे बस सीधा इसका ये समझने का we need to understand कि each and every country, specifically European countries, wanted to have similar kind of governance in their country as well. और अगर देखो इसी पेंटिंग को, if you look at the painting in detail, you will see कि जो कुछ signs of monarchy हैं, जैसे कि you can see here, if you see, I'll show you few of the symbols of
whatever we can say that related to monarchy. This, I suppose you can see, this is a throne, this is actually the crown of the king, है ना. तो यहाँ पे ऐसे towards the, you can say, bottom of this painting you can see lot of symbols which somehow signify the यू कैन से मोनार्की या फिर एम्परर एम्पायर. ये वाली चीजें जो है इसको ये क्या बोल रहे हैं, दे आर थ्रोन डाउन. तो व्हाई आर दे थ्रोन डाउन, बेसिकली यहाँ पे बता रहे कि वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ governments and we want actually the governance which will include the ideas like democracy, liberty and these kind of things. तो ये चीज जो है ये इस पेंटिंग के थ्रू हमें बता रहे हैं. और इसमें एक एब्सोल्यूट टर्म यूज हुआ. एब्सोल्यूट मींस बेसिकली द गवर्नमेंट जिसमें जो रूलर है वो कुछ भी कर सकता है एंड विदाउट नो रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस द रूलर कैन टेक अप एनी काइंड ऑफ डिसीजन. ठीक है. तो लोग जो है अब ये एब्सोल्यूट रूल नहीं चाहते. एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक और चीज का डिस्क्रिप्शन है, यूटोपियन गवर्नमेंट. ठीक है. यूटोपियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यूटोपियन मतलब होता है एक बहुत आइडियलिस्टिक सोसाइटी, मतलब ऐसी सोसाइटी विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. समवेयर यू कैन से कि मतलब इतनी अच्छी सोसाइटी, इतनी आइडियलिस्टिक सोसाइटी है, वहां पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, कुछ गलत नहीं होता, एवरीवन इज फ्री, एवरीथिंग इज गुड, लिबर्टी है, फ्रीडम है, एवरीथिंग इज देयर. एकदम एग्जैक्ट आइडियल ऐसी गवर्नमेंट तो पॉसिबल नहीं है. बट दे ऑल ऑफ देम वर एक्चुअली विजुअलाइजिंग दीज यूटोपियन काइंड ऑफ विजन एंड दे वांटेड कि ऐसी टाइप की जो हमारी भी कंट्री बन जाए. So all over the world here you can see in this picture कि वो अलग अलग कैसे दिखा रहे हैं अलग अलग countries through their different maps. You can see the map of various countries that is shown in this particular painting. यानी हर country जो है वो चाह रही थी कि हम लोग भी इसकी तरफ move करें, यानी we also want such kind of change in our country as well. अब इसी प्रोसेशन में अगर देखो तो लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, पहले यूएस है, स्विट्जरलैंड है, बिकॉज ये वाली जो दो है ये ऑलरेडी क्या बन गए थे, नेशन स्टेट बन गए थे. एंड उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस है, बेसिकली उसके ट्राई कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रांस है. देन वी हैव जर्मनी एंड देन वी हैव मेनी अदर कंट्रीज विच आर फॉलोइंग देम. तो यहाँ पे एक चीज जो हम बोल सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि जर्मनी थी वो ऑलरेडी हमें पता है 39 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और मतलब फ्रेगमेंटेड थी बेसिकली. तो वो तब तक एक यूनाइटेड नेशन थी ही नहीं. बट स्टिल उन्होंने, जो ये पेंटर है फ्रेडरिक सूरियो, इन्होंने इस पेंटिंग में जर्मनी को एक ही फ्लैग से शो किया, मतलब पीपल होल्डिंग द फ्लैग ऑफ जर्मनी. और अब हम इसमें यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रीज है वो एक तरीके से यूनिफिकेशन के साथ साथ कंट्री में एक मेन गवर्नेंस चेंज लाने की भी कोशिश कर रही है. तो इससे रिलेटेड ये कि जर्मनी का कैसे यूनिफिकेशन होगा, एंड दिस ऑल विल स्टडी इन डिटेल इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब इसके बाद जर्मनी के बाद बहुत सारी और कंट्रीज है, ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, इंग्लैंड है, रशिया है, मतलब ऑल ऑफ दीज आर वांटिंग टू हैव सच चेंज इन देयर कंट्री एज वेल. अब इस पेंटिंग में अगर ध्यान से देखो, फ्रॉम द हेवन, दैट इज यू कैन सी टुवर्ड्स समवेयर इन द स्काई, even the angels or even you can say Jesus Christ जो है, they are gazing and looking at this scene, and somewhere इस पेंटिंग के थ्रू पेंटर अपने को बोल रहे हैं कि they are also happy कि हाँ ये ऐसा कुछ चेंज आना चाहिए and this is a good change, मतलब they are also somewhere blessing this kind of change. और फ्रेटर्निटी, बिकॉज फ्रेटर्निटी समवेयर ब्रदरहुड, बिकॉज सारी कंट्रीज एक टाइप का ही चेंज चाहते हैं, दैट इज वाई. तो ये जो चैप्टर है पूरा, इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि कैसे सारी कंट्रीज जो हैं वो मूव कर रही हैं टुवर्ड्स दिस यूनिफिकेशन थिंग एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द चेंजिंग द आइडिया ऑफ all of them belonging to one particular nation. एक्चुअली में क्या है, 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म वाली आइडिया अराइज होगी ना, वो इसीलिए होगी क्योंकि इससे पहले जो था, लोग जो है वो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये नेशन स्टेट क्या है, या एक तरीके से हम जो सारे लोग एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, दिस आइडिया हैड नॉट डेवलप्ड.
बिकॉज उस समय क्या था कि ज्यादातर आप सिर्फ जिस रूलर के अंडर हो और उस रूलर के अंडर जितना एम्पायर है आप उसी को क्या समझते थे, अपनी कंट्री समझते थे. यू डिड नॉट कंसिडर अ सर्टन पॉलिटिकल टेरिटरी एज योर कंट्री. और हम जब बोलेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट दैट वी ऑल आर इंडियंस, वी हैव सर्टेन आइडियोलॉजी अबाउट इंडिया. एक तो एक सर्टेन पॉलिटिकल टेरिटरी फिक्स्ड है, हमें पता है हमारा एक शेयर्ड कॉमन पास्ट है, एक सेम कल्चर है, वी ऑल बिलोंग टू समहाउ वन पर्टिकुलर कंट्री, हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है. वो जैसे इंडिया में भी बाद में डेवलप हुई थी, वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज में भी वी विल सी दैट इट विल डेवलप लेट. यानी इनिशियली जैसे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, हम टुवर्ड्स द एंशियंट इंडिया, हम जिस पर्टिकुलर रूलर के अंदर होते थे ना, हमारी जो फीलिंग ऑफ बीइंग लॉयल या फेथफुलनेस सिर्फ उस पर्टिकुलर रूलर की तरफ होती थी, पूरी कंट्री की तरफ नहीं होती थी. इट वाज काइंड ऑफ रीजनल फेथफुलनेस यू कैन से. हम पूरे इंडिया को ऑब्वियसली हम बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे, गुप्ता एम्पायर, मॉडर्न्स जो थे, उन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को अपने अंडर कर लिया था, अगर एंशियंट इंडिया की बात करें, फिर मिडिवल में भी हुआ था. बट पूरा जो अब हम इंडियन या बीइंग इंडियन की बात करते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ था. उसी तरीके से यूरोप में भी वो धीरे धीरे डेवलप होगा, क्योंकि हर कंट्री में जो है कुछ सेक्शन किसी दूसरी कंट्री के अंडर होता था, किसी दूसरे रूलर के अंडर होता था. तो बीइंग बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर कंट्री, ये जो आइडिया है ये बहुत लेट डेवलप हुआ. और ये कैसे डेवलप हुआ, यही है पूरा जो हम इस चैप्टर में करेंगे. सो नाउ मूविंग ऑन टू, ये जो होल कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ. ये शुरू हुआ था फ्रांस में. तो ये जो फ्रांस में हम बात करेंगे, जो हमने अभी तक ये पूरे आइडिया की बात की है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम, ऑल ऑफ यू बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर एरिया, ये पूरे यूरोप में नहीं था, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, ये सारी चीजें डेवलप और बिलोंगिंग टू वननेस जो है, जो अभी तक नहीं थी, वो सबसे पहले कहाँ से आई, वो सबसे पहले आई फ्रांस से. और फ्रांस से कब आई वो, फ्रांस से आई आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे. हमने मेनली जो पढ़ा था इन आवर 9th क्लास, समवेयर वी हैड दैट आइडिया कि वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट द पॉलिटिकल चेंज, कि जैसे सबसे पहले मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, उसके बाद कैसे रिपब्लिकन फॉर्म हुई. तो समवेयर वी आर समवेयर रिलेटिंग इट ओनली टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री, जबकि हमने दूसरे एस्पेक्ट्स पढ़े थे कि सोसाइटी में भी चेंज आया था और बाकी चीजों में भी चेंज आया था. बट हेयर वी विल स्टडी की फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुई, ऐसा क्या किया था फ्रेंच पीपल ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि ये जो फीलिंग ऑफ बीइंग वन जो है ये लोगों के अंदर इमर्ज हो गई थी. सबसे पहली चीज जो है, इन लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उसके टाइम पे एस्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या किया था, नेशनल असेंबली. आई सपोज ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, हमने एस्टेट जनरल के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि लुई 16 ने मीटिंग बुलाई थी बिकॉज ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस, फिर थर्ड स्टेट वहां से मूव ऑन हो गए थे. सो दिस ऑल वाज एक्चुअली व्हाट वाज इट, इट वाज one step toward talking about the idea of nationalism. जब आपने स्टेट जनरल को नाम ही चेंज करके क्या कर दिया है, नेशनल असेंबली कर दिया है, इसका मतलब क्या है, यू आर समवेयर ट्राइंग टू चेंज द आइडिया कि मतलब सिर्फ स्टेट्स के बेसिस पे नहीं है, ये पूरा हमारे किस बेसिस पे है, नेशन के बेसिस पे है. तो सबसे पहला जो चेंज था वो ये था. इसके अलावा हमें एज आई सेड कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस तो हुए ही थे कि मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और उसके बाद रिपब्लिक हो गई. उसके बाद हमें ये भी पता है कि फ्रेंच सिटीजन्स जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे. जब हम फ्रेंच सिटीजन की बात करते हैं, अगेन यू मे रिमेम्बर कि कुछ टर्म्स आए थे उस टाइम पे, जैसे ले सिटोयन,
एंड ले पेट्री, ये बेसिकली क्या थे? ले पेट्री का मतलब था फादरलैंड, ले सिटीजन का मतलब था सिटीजन। तो यानी आप क्या कर रहे हो, अब अपने आप को सिटीजन बता रहे हो अबाउट वन कंट्री। तो इससे अगेन क्या आ जाता है? फीलिंग ऑफ बीइंग वन, कलेक्टिव आइडेंटिटी। और सारे लोग मिलके इक्वल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देन इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ा बहुत सारी और चीजें होती है जो सिर्फ रूल्स या रेगुलेशन या पॉलिटिकल चेंजेस से के कारण हमारे अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं लाती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्टेट जनरल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ये सब अबॉलिश हो गए थे। तो ऑब्वियसली आपको फिर लगेगा कि हम एक कंट्री का ही पार्ट है। बट इसके साथ साथ एज आई सेड कि बहुत और सारी चीजें होती है, जो बहुत और चीजें होती है उसमें, जैसे कि न्यू एक नेशनल फ्लैग इन्होंने फ्रेंच का फ्लैग बनाया था, द ट्राई कलर। तो और वो जो पहले रॉयल का मैप था, यानी जो एम्पर वगैरह का मैप था, उसको हटा दिया था। तो जब उसको हटा दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगेन यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग बिलोंगिंग टू वन कंट्री। इफ whenever we see the flag of India, you may also know कि एक सर्टन फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म जो अपने आप आ जाती है कि ये हमारे इंडिया का फ्लैग है। उसी तरीके से ये फ्लैग इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद देन उसके बाद ये लोग ओथ लेते थे। एंड जो मार्टियर्स है, मार्टियर्स कौन होते हैं? जैसे शहीद होते हैं, उनको सेलिब्रेट करते थे कि इन्होंने हमारे नेशन के लिए इतनी अच्छी चीजें की है। इसके अलावा यूनिफॉर्म लॉज सारे सिटीजन्स के लिए किए, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दिए, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज और मेजर्स अडॉप्ट किए। तो यानी इससे क्या है, इन सारे एक्शंस के थ्रू वो कोशिश कर रहे थे कि पूरे फ्रांस को यूनाइट कर ले और लोगों को लगे कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री एंड द सेम प्लेस। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको डिस्करेज करके फ्रेंच, जैसे कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, उसको एक कॉमन लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। तो वो जब कॉमन लैंग्वेज बनाएंगे, अगेन अगर अपनी एक कॉमन लैंग्वेज होगी तो हम एक दूसरे को सेम मानते हैं, बिकॉज अपनी लैंग्वेज सेम है। तो वो फीलिंग ऑफ अगेन कलेक्टिव वननेस, बीइंग वन, ये वाली फीलिंग क्या हो जाती है, धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। ओके, नाउ अब जब ये आइडियाज हम देखेंगे कि इट वाज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रांस, तो ऑब्वियसली फ्रांस के बाद ये जो आइडिया है ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनमें भी स्प्रेड होने लग गई थी। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो हैं उन्होंने बोला था कि इट इज समवेयर our duty to bring certain similar kind of changes in other parts of Europe also. तो ये चीजें ये स्प्रेड कर रहे थे इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप और जो दूसरे कंट्रीज है सराउंडिंग द फ्रेंच कंट्री। अब क्या हुआ कि जब ये आइडियाज बाकी कंट्रीज में स्प्रेड हुए तो ऑब्वियसली वहां पे भी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है इन्होंने जैकोबियन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। जैकोबियन क्लब जब इन्होंने बनाया तो क्या हुआ, एज यू मे बी रिमेम्बरिंग कि अपने फ्रांस में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी उसके बाद जब जैकोबियन क्लब बने थे, जिनमें से ही मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर जो है नेक्स्ट लीडर बना था फ्रांस का। तो ऐसे ही जैकोबियन क्लब्स जो हैं वो बाकी कंट्रीज में भी फॉर्म होने लगे, यूरोपियन कंट्रीज में। और उसके बाद फ्रांस की जो आर्मीज है, फ्रेंच आर्मीज, वो बोल रही थी यस वी आर रेडी टू हेल्प दी अदर कंट्रीज इफ दे वांट आवर हेल्प एंड इफ दे वांट सम रेवोल्यूशनरी वॉर्स सो दैट सिमिलर चेंजेस कैन कम। तो जब ये फ्रांस की आर्मीज हैं ये हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ इटली में भी मूव की थी ताकि रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो वहाँ पे आउटब्रेक हो रही है उसको हेल्प कर सके। और ये वाली जो आइडियाज है नेशनलिज्म की, ये बाकी कंट्रीज में भी जो है वो स्प्रेड होने लग गए। सो दैट मीन्स ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है जो स्टार्ट हुआ है फ्रांस से, अपने नेसेंट फेज पे है, एकदम इनिशियली स्टार्ट हुआ है, इन्होंने स्टेप लेना शुरू किया है, वो बाकी कंट्रीज ने भी लेना शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं ऑन आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट नेपोलियन। ठीक है,
अब वी नो टूवर्ड्स द एंड, जब हमने 9th क्लास में चैप्टर एंड किया था, फर्स्ट चैप्टर हमने बेसिकली एंड किया था ऑन नेपोलियन, कि नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर इन 1804, मतलब अराउंड 1799 टोटल कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था, जब वो डायरेक्टरीज और जो मेंबर्स थे उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो आपस में ही दे वर नॉट हैप्पी विद ईच अदर एंड दे वर समवेयर हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो जिसका फायदा नेपोलियन ने उठा लिया था एंड ही बिकेम द मेन रूलर, एंड देन इन 1804 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर। और उसके बाद उन्होंने क्या बड़े बड़े चेंजेस किए, he actually did lot of changes if we talk in terms of administrative field। तो उन्होंने क्या किया था, जबकि हम बोल सकते हैं कि ठीक है उन्होंने समवेयर जो मोनार्की है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, but administ because he then declared himself emperor, that is why, but he brought lot of administrative changes which were very good, ठीक है, बहुत rational थे, efficient थे, and these changes we actually call them as the civil code, ठीक है, it is called as the civil code of 1804 or it is also called as the Napoleonic code। Okay, now in this Napoleonic code or the you can say civil code of 1804, इन्होंने पहले तो क्या किया, जितनी भी बर्थ से प्रिविलेजेस थी जो सो कॉल्ड हायर एस्टेट वाले लोगों की थी, कि बिकॉज दे हैव टेकन बर्थ इन दैट पर्टिकुलर फैमिली और दैट पर्टिकुलर ग्रुप, तो उनको जो स्पेशल एडवांटेजेस दी जाती थी उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। Second, he introduced equality before law, that everybody will be equal in front of law। उसके बाद उन्होंने क्या किया, right to property। Actually at that time everybody did not had the right to property, मतलब सब आराम से जो लैंड है उसको खरीद नहीं सकते थे इन देयर नेम, तो ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने सिक्योर कर दिया था एंड एवरीबडी नाउ कुड बाय द प्रॉपर्टी और लैंड। और ये जो कोड है ऑब्वियसली जो बाकी एरियाज फ्रांस के कंट्रोल में थे वहां तक भी पहुंच गई थी, चाहे वो हम डच रिपब्लिक की बात करें, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, बहुत जगह पे नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, एंड इसके साथ साथ जो सर्व्स वगैरह थे उनको फ्री कर दिया फ्रॉम द एक्स्ट्रा सर्विसेज दैट दे हैड टू गिव टू द अपर क्लास पीपल। सो ही ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस। इसके अलावा टाउन्स में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, जो गिल्ड होते हैं वो मर्चेंट्स का ग्रुप होते हैं जो पूरे ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो जब ऐसे गिल्ड होते हैं ना और इनके कुछ मेंबर्स होते हैं, ये अपने ग्रुप और मेंबर्स के अलावा किसी को नए बिजनेस में एंटर नहीं होने देते आसानी से, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया जो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस थी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया, जिससे ऑब्वियसली पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स और जो नए बिजनेसमैन थे उनको बहुत अच्छा लग रहा था, उनका काम आराम से हो रहा था। और इस और क्या क्या चीजें की जिससे बिजनेसमैन हैप्पी थे, बेसिकली यही था, स्टैंडर्डाइज वेज था, यूनिफॉर्म लॉज थे, और इसके अलावा एक कॉमन नेशनल करेंसी बना दी थी जिसके कारण ट्रेड में बहुत आसानी हो रही थी, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेयर एंड देयर में भी आसानी हो रही थी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैपिटल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बिकेम वेरी इजियर फॉर दीज पीपल एंड दीज पीपल वर वेरी हैप्पी। अब क्या हुआ, जिन एरियाज में ऐसा नहीं था उनको लग रहा था कि अगर हमारी कंट्री में भी ऐसा कोई चेंज आ जाए तो ऑब्वियसली आवर लाइफ विल आल्सो बी वेरी वेरी इजी एंड विल बी नाइस। तो इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो ये बाकी कंट्रीज है ये समवेयर फ्रांस को ऐसे ही देख रहे थे कि हमारी कंट्री में भी अगर आएंगे तो अच्छा है, हमारे में भी इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल्स, मिलान, इन सबको जब फ्रेंच आर्मीज आ रही थी तो ये लोग है ना बहुत अच्छी तरीके से इनको इनवाइट कर रहे थे, बिकॉज दे वर हैप्पी कि हमारी कंट्री में भी ऐसा चेंज आएगा। तो इनिशियली दे वर वेलकम्ड एंड दे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब जो कंट्री में लिबर्टी लाएंगे, बट it did not happen as they thought। क्यों?
इन्होंने जैसे सोचा था वैसे चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थोड़े से नेपोलियन लाए, बट उसके बाद ही टुक लॉट ऑफ स्टेप्स विच वर नॉट इन फेवर ऑफ दीज कंट्रीज। इसीलिए उनका जो इनिशियल एंथुजियाज्म है वो धीरे धीरे चेंज होके हॉस्टिलिटी की तरफ मूव हो गया, समवॉट हेट्रेड जैसे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स तो आ गए पर इससे इनकी पॉलिटिकल फ्रीडम चली गई। कैसे? जब नेपोलियन ने इनिशियली हेल्प किया इनको अपने कंट्री से, जो भी इनके एम्परर या जो भी रूलर है उनको हटाने के लिए और उसकी जगह कोई और बैठाने के लिए, तो जो पॉलिटिकल हेड होते थे ना वो समवेयर अंडर नेपोलियन ही होते थे। दे हैड टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिम। इसके अलावा टैक्सेशन बढ़ा दिए, सेंसरशिप कर दी, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है, जबरदस्ती आर्मी में लोगों को डालना है कि आपको आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा, और वो भी फ्रेंच आर्मीज में, ताकि रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है उसको नेपोलियन क्या कर सके, कॉन्कर कर सके। तो अब इन कंट्रीज को लगा कि हमारा तो फायदा से ज्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो किए हैं थोड़े बहुत, पर हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम चली गई, क्योंकि अब हमारे ऊपर हमारी कंट्री का मतलब हमारे कंट्री मेंबर का रूल नहीं है। आर्मीज में जबरदस्ती हमें वो भी फ्रेंच आर्मीज में सर्व करना पड़ता है, क्योंकि उनको बाकी यूरोप पे कंट्रोल करना है। सेंसरशिप कर दी, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। फोर्स कंस्क्रिप्शन है एज आर्मी में जबरदस्ती करने के लिए। इसके अलावा टैक्सेस भी बढ़ा दिए। सो नाउ पीपल अंडरस्टूड दीज कंट्रीज दैट in lot, if we are talking about the changes in terms of administrative changes, तो ठीक है, they brought few changes, but इसके बदले में जो हमारे जो चेंजेस नेगेटिव हुए हैं, स्पेशली जो पॉलिटिकल फ्रीडम और बाकी टैक्सेशन वगैरह और फोर्स कंस्क्रिप्शन एंड सेंसरशिप और बाकी जो चेंजेस है, दे आर टोटली वेरी वेरी बैड फॉर अस एंड हैविंग वेरी बैड इफेक्ट ऑन देयर लिबर्टी, फ्रीडम एटसेट्रा। So then they realized that the advantages are very less and disadvantages are much more than whatever we expected. So with this we basically complete कि कैसे क्या changes आए थे और नेपोलियन ने कैसे expand किया और उसके क्या results हुए. Then we will see in the next part that how these people, the other European countries, not only these but few other powerful European countries जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये जो है ये नेपोलियन को रोकने के लिए आगे क्या स्टेप लेंगे, हाउ विल ऑल ऑफ देम कम टुगेदर एंड फाइट नेपोलियन एंड डिफीट हिम इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, एंड इन बिटवीन और क्या क्या चेंजेस आएंगे इन दिस एरिया, मतलब सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे और फिर उससे आगे लिबरलिज्म और ऐसे कुछ कुछ आइडियाज जो हैं वो डेवलप होगी. So we have basically completed till the French Revolution and the idea of nation, and also what were the steps that were taken by Napoleon which were positive, and then later on kitne negative effects. So with this we complete today's class and we'll continue tomorrow class with the next topic. And if you have any doubt till this portion, feel free to ask. Please do give this portion a reading. It is around, it is not that much. Just give this portion a reading. If you have any doubt, come with your doubt and we'll solve all your problems. Okay. So see you all. Meet you all in the next class.